সকলকে সুপ্রভাত জানিয়ে যে বিষয়টি নিয়ে আমি শুরু করছি, দর্শন শাস্ত্রম অর্থাৎ ইউনিট 4-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য তর্ক সংগ্রহকে নিয়ে আলোচনা করব আজকে। তাই বিষয়টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীদের কাছে শোনার অনুরোধ রইল। বিষয়টিকে কেউ স্কিপ করে যেও না, বিষয়টি মনোযোগ সহকারে শোনো, তাহলে তর্ক সংগ্রহ তোমাদের খুব ভালো করে বোঝা হয়ে যাবে। 6 পাতার মূল অংশ, 7 পাতায় শুধু কিছু প্রশ্ন এবং 8 পাতায় আমার অ্যাড, এই নিয়ে তর্ক সংগ্রহ। তো শোনো মনোযোগ সব ভালো করে তর্ক সংগ্রহটা। আমি যথারীতি ক্যাম স্ক্যানারে চলে যাচ্ছি, একটা করে অংশ বার করব, যে যে অংশগুলোকে ভালো করে দেখতে বলবো সে জায়গাগুলোকে ভালো করে দেখে নিলেই হবে। তো দেখো অলরেডি আমি বার করে নিয়েছি। তো তর্ক সংগ্রহ বলতে গেলেই সবার প্রথমে যে অংশটা চলে আসে সেটা হচ্ছে পদার্থের বিভাগ। তর্ক সংগ্রহে পদার্থের বিভাগটাকে কীভাবে করা হয়েছে? দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব, এইভাবে পদার্থের বিভাগটাকে করা হয়েছে। দ্রব্যের মধ্যে কোনগুলো আসে? পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন। ঠিক আছে, এই পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, এটা একটা অংশ। তো পৃথিবী ও তেজ, বায়ু, এগুলো হচ্ছে নিত্য অনিত্য, এই দুভাগে ভাগ করা হয়। নিত্য অনিত্য থাকা সত্ত্বেও এদের শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়, এইভাবে একটা ভাগ আছে। কাল দিকের কোনো রকম, আকাশ কাল দিকের কোনো রকম বিভাজন নেই। আত্মাকে দুভাগে ভাগ করা হয়, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা। পরমাত্মা এক, জীবাত্মা অসংখ্য, মনের সংখ্যা অসংখ্য। গুণ 24 প্রকার রয়েছে: রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দেশ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার। বা কর্মকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, কর্মকে 5 ভাগে ভাগ করা হয়েছে: উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন। সামান্যকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে: পর, অপর, পরাপর। বিশেষ সমবায়ের কোনো রকম কোনো বিভাজন নেই। এবং অভাবকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে: প্রাগভাব, প্রধ্বংসভাব, অত্যন্তভাব এবং অনন্যভাব। টিকা এবং টিকাকার, এই যে জায়গাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, টিকা এবং টিকাকার, তর্ক সংগ্রহের এই জায়গাটা খুব ভালো করে দেখতে হবে। টিকা এবং টিকাকার: ন্যায়ভাষ্য টিকা, টিকাকার বাদশায়ন। ন্যায়বার্তিক টিকা, টিকাকার উদ্যোতকর। ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি, এটা উদয়নের। ন্যায় কুসুমাঞ্জলি, এটা উদয়নের। ন্যায় মঞ্জরি, এটা জয়ন্ত ভট্টের। ন্যায় বার্তিক তাৎপর্য টিকা, এটা বাচস্পতি মিশ্রের। তাহলে এইভাবে কি হলো, আমাদের 1 পৃষ্ঠা ফিনিশ হলো। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চলে আসছি, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নিশ্চয়ই। সেকেন্ড পৃষ্ঠা এটা হচ্ছে। এখানে প্রথমে যেগুলো দেখতে হবে লক্ষণগুলো ভালো করে দেখতে হবে। পৃথিবী নিরূপণম। तत्र गन्धवती पृथिवी सादिविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणुरूपा अनित्या कर्म कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शैरन्द्रिया विषयभेदत् शैरम् अस्मदादीनाम् इन्द्रियाः गन्धगाहकं घ्राणं नासा ग्रवित्ति विषये मित्प्रासनादिः। अपनिरूपणम्। शीतस्पर्शवत्य आपः नित्य अनित्यस्य नित्यः परमाणुरूपाः अनित्यः कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधाः शैरेन्द्रिय विषयभेदत् शैरं वरुणलोके इन्द्रियं रसगाहकं रसनं जिह्वागवेत्ति। तेजः निरूपणम्। उष्णस्पर्शवत्त तेजः तद्विधं नित्यमनित्यं च नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपं पुनस्त्रिविधं शैरेन्द्रिय विषयभेदत् शैरम् आदित्यलोके इंद्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवित्ति विषयानुवर्ति विषयश्चतुर्विधः भौमदिव्याकराजिभेदत् भौमं वन्यादिकम् अविन्दनं दिव्यं विद्युदादिभुक्तस्य परिणाम हेतुरदर्शम् आकर्यं सुवर्णादि। वायुनिरूपणम्। रूपरहित स्पर्शवान् वायुः सादिविधः नित्यानित्यश्च नित्य परमाणुरूपः अनित्य कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः शैरेन्द्रिय विषयभेदात् शैरं वायुलोके इंद्रियं स्पर्शग्राहकं तं सर्वशैरवत्ति विषया वीक्षकंपन हेतुः
शैडांत संचारी वायु प्राणः स च एक अपि उपाधि भेदत् प्राण प्राणादि संज्ञां लभते। आकाशं निरूपयति किम्? आकाशं निरूपयति शब्दगुणकमाकाशं तच्चैकं विभु नित्यश्च। कालनिरूपणम् अतीतादि व्यवहार हेतुः कालः स च एक विभु नित्यश्च। दिग्निरूपणं किं? प्रत्यादि व्यवहार हेतु दिक् स च एक नित्वा विभि च। नेक्स्ट आत्मनिरूपणं ज्ञानाधिकरणमात्मा सद्विदः परमात्मा जीवात्मा चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मैक एव जीवात्मा प्रति शरीरं विन्यो विभु नित्यश्च। मनोनिरूपणं सुखादुपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यगात्मन्यतद् अनन्तरं परमानुरूपं नित्यं च। एबारे 3 नंबर अंक से गुणनिरूपणं ज्ञानः सर्वव्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानं सद्विधा स्मृतिरनुभवश्च संस्कारमत्तजन्यं ज्ञानं स्मृतिः अनुभव तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः स द्विविधः यः तस्यति तद्वति तत्प्रकारक अनुभव यथा अयं घटः इति ज्ञानं सैव प्रमेत्युच्यते तदभावति तत्प्रकारकस्य सत्तः यत्तनुभवस्य चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्तुपमितिकशब्दभेदत् तत्कारणम् अपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दभेदत् कारण असाधारणं कारणं करोणं कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणं कार्यं प्रागभाव प्रतियोगी कारण विभाग कारणं त्रिविधं समवाय निमित्तभेदत् यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत् समवाय कारणं यथा तन्तुराः पटस्य सगतोरुपादेः कार्येन करणेन वा सह एकैकस्मिन्नर्थे समवेदत्त सति यत् कारणं तत् समवाय कारणं तथा तन्तुसंयोगः पटस्य पटरूपस्य तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणं यथा तूणीवेमादिकं पटस्य तदेतत् त्रिविधकारणपक्षे यत् साधारणं कारणं तदेव करणं। नेक्स्ट प्रत्यक्ष ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम इंद्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम तद्विवेदं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं सपकारकं ज्ञानं सविकल्पकं यथा द्वितीयम् अब्राह्मणायं श्याम अयमेति प्रत्यक्षं व्याख्यातं प्रत्यक्षं प्रत्यज्ञान हेतुरिन्द्रियार्थसन्निकर्ष सर्ववेदः संयोग संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः वेशनवेश्य भावश्चेति चक्षुषा घटप्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षः घटरूप प्रत्यक्षे संयुक्त समवायः सन्निकर्षः चक्षुसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः चक्षुसंयुक्तो घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् सूत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः कारणविवर प्रत्यकाशस्य सूत्रत्वात् शब्दस्याकाशत्वात् गुणगुणिनश्च समवायात् शब्दता साक्षात्कारे। 4 नंबर पेज की देखते हुए समवेत समवायः सन्निकर्षः श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्यस्य समवायात् अभाव प्रत्यक्षे भीषण भावः सन्निकर्ष्य घटभाव भूतलम् अत्र चक्षुः संयुक्ते भूतले घटभावस्य भीषणत्वात् एवं सन्निकर्षतरजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तत्कारणमिन्द्रियं तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणमिति स्वध्यं। परामस्य अनुमितिकरणमनुमानं परमस्यजन्यं ज्ञानमनुमितिः व्याप्तिर्विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं परमस्य यथा बन्निव्यापदुमनायं पर्वत इति ज्ञानं परमस्य तज्जन्यं पर्वत बन्निमान इति ज्ञानमनुमितिः अनुमान यत् धूमस्तत्राग्निरिति सातजनियम व्याप्यस्य पर्वतादिवित्तित्तं पक्षधर्मता अनुमानं द्विविधं स्वार्थं परार्थं च तत्र स्वार्थं सानुमान हेतुः तथा हि स्वयम् एव भूदर्शनेन यत् धूमस्तत्राग्निरिति महानसदौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतः तद्गते च अग्नौ सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं समरोति तत्र यत्र धूमस्तत्राग्निरिति तदनन्तरं बन्निव्यापधूमनायं पर्वत इति ज्ञानमुत्पद्यते अयमेव लिङ्गपरमस्य उच्यते तस्मात् पर्वतबन्निमान् इति ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते तदेतत्सर्थानुमानं निष्परथ्यानुमानं यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परपतिपत्तत्यं पञ्चवायव वाक्यं प्रयुज्यते
तत् परत्वानुमानं तत् यथा पर्वतवन्यमानका धूमवत्वात् खा यो धूमवान् स अग्निवान् यथा मानसं घा ततच्चायं घा तस्मात् तथा धूमवान् स धूमवान् वा इति अनेन प्रतिपादित्य लिङ्ग्यात् परोऽपि अग्निं प्रतिपद्यते प्रतिज्ञा हेतुदाहरणाय उपनयनिगमनानि पञ्चवयवाः पर्वत अग्निमनिमानिति प्रतिज्ञा धूमवत्वादिति हेतुः योज धूमवान् स अग्निमान् यथा महानसम् इत्युदाहरणं यथा चायम् इत्युपनयः तस्मात् तथेति निगमनं सार्थानुमिति परार्थानुमित्युलिङ्गपरमस्य एव कारणं तस्माल्लिङ्गपरमस्य आणोमानं त्रिविधलिङ्गः लिङ्गं त्रिविधम् अन्य व्यातिरेकी केवलन्ययी केवल व्यातिरेकी च इति अन्वयेन व्यातिरेकेन च व्याप्तिमद्वन्य व्यातिरेकी यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्तं यत्र धूमस्तत्राग्निरिति अन्यव्याप्तिः यत्र वर्णे नास्ति तत्र धूमयोऽपि नास्ति यथा महारथः इति व्यातिरेकव्याप्तिः अन्यमात्रव्याप्तिकं केवलन्ययी। 5 नंबर पेज देखो यथा घट अविधेयः प्रमेयत्वात् पटवत् तत्र प्रमेयत्वात् विधेयत्वात् व्यातिरेक व्याप्तिर्मास्ति सर्वस्य एव प्रमेयत्वात् विधेयत्वाच्च व्यातिरेक मात्र व्याप्तिकं केवल व्यातिरेकी यथा पृथिवीत्वरेभ्य विद्यते गन्धवत्वात् यदि तरेभ्य न विद्यते न तद्गन्धवत् यथा जलं न चेयं तथा तस्मात् न तदेति अत्र यद्गन्धवत् तदितर भिन्नम अत्यन्यो दृष्टान्त नास्ति पृथ्वीमात्रस्य पक्षत्वात् पक्ष पक्ष विवक्ष संदिग्ध शब्दवान् पक्षः यथा धूमवत्ते हेतु पर्वतः निश्चित शब्दवान् सपक्षः यथा तत्रैव मानसं निश्चित शब्दभावान् विपक्षः यथा तत्रैव महा हृदः उपमान ओमिति करणम् उपमानं संज्ञा संबंध ज्ञान ओमिति तत्करणं सदृश्यं ज्ञानं तथा हि कश्चित् गवय शब्दवाच्यमादारं कुतश्चित् आरण्यकपुरुषात् गो सदीश गवयः इति श्रुत्वा वनं गते गतो इति श्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन् गो सादिशं पिण्डं पश्यति तदनन्तरम् अयं गवय शब्दवाच्यः इति उत्पद्यते शब्दखण्डम् आप्तवाक्यं शब्दः आप्तस्तु यथोक्तवक्ता वाक्यं पदसमूहः यथा गामानयो शुक्लं दप्तनीति आदसक्तं पदमस्मच्छदयम् अर्थो बद्धव्य इति संख्य इति ईश्वर संकेतः शक्तिः आकांक्षा योग्यता सन्निधि आकांक्षा योग्यता सन्निधि किम आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतुः पदस्वापदं तत्र व्यतिरेक प्रयुक्तन्नय पदस्वपदंत व्यतिरेक प्रयुक्तन्नय अनुभाव आकांक्षा अर्थवाद योग्यता पदानाम् अविलम्बेन उच्चारणं सन्निधिः तथा च आकांक्षादिरहितं वाक्यं प्रमाणं यथा गौरस्य पुरुषः अस्ति इति वाक्यं न प्रमाणम् आकांक्षा आकांक्षा विरहात् अग्नेन सिञ्चेत् इति न प्रमाणं योग्यता विरहात् प्रहरे असच्चरितानि गामनय इत्यादि पदानि न प्रमाणार्थं सन्निधि भवत् वाक्यं द्विविधं वैदिकं लौकिकं च वैदिकमीश्वरत्वात् सर्वमेव वाक्यं प्रमाणं लौकिकं तत्तमेव प्रमाणम् अन्यद प्रमाणं वाक्यत्व ज्ञानं शब्द प्रमाणं तत्करणं शब्दः इति शब्द प्रमाणम् तर्क इत्थभासः इत्थभासः क्या 6 पेज तर्क इत्थभासः तर्कसंग्रहः सविचारः विरुद्धः सत्प्रतिपक्षः सिद्धवादितः सविचार 3 प्रकार साधारण असाधारण एवं अनुपसंहारी असिद्ध 3 प्रकार आश्रय सिद्ध स्वरूपा सिद्ध एवं व्याप्यत सिद्ध सविचार लक्षण की अच्छे सविचार अनैकांतिकः साधारण अथवा से तत्र साध्य भगवद वृत्ति ही साधारण अनैकांतिकः तत्र साध्य भगवद वृत्ति तत्र साध्य भगवद वृत्ति ही साधारण अनैकांतिकः उदाहरणं पर्वत वन्यमान प्रमेयत्वात् असाधारण सर्वसपक्क विपक्क व्यापृत्वः पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः उदाहरण शब्द नित्यः शब्दत्वात् नेक्स्ट अनुपसंहारी अन्य व्यातिरेक दृष्टान्त रहित अनुपसंहारी नेक्स्ट सर्वम अनित्यं प्रमेयत्वात् गलो विरुद्ध की साधभावद्वंत हेतुर्विरुद्धः नेक्स्ट उदाहरण की शब्दोनित्व कृतकत्वात् नेक्स्ट सत्प्रतिपक्क
साध भाव साधकम हेतु अर्थंतरम जस्य सत्प्रतिपक्षः। नेक्स्ट उदाहरण की अच्छे शब्दो नित्यो श्रावणत्वात् शब्दत्वाद इति गलो असिद्ध आश्रय सिद्धर मध्य बच्चे गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सर्वयारविंदवत् और स्वरूपा सिद्धर मध्य बच्चे शब्दो अनित्य चाक्षुषत्वात् व्यापक सिद्धर मध्य बच्चे साधन्यवन्निष्ठास्तस्य भावः प्रतियोगितम साधना व्यापकत्यम बाधितोर मध्य যেটা বলছে সেটা হচ্ছে यस्ता सद्भावः परमानंतरेण निश्चितः सा बाधितः बन्हीननुष्णद्रव्यत्वात् इति। 6 নম্বর পেজ গেল। হ্যাঁ 7 নম্বর পেজ হচ্ছে পুরোপুরি তর্ক সংগ্রহের যে প্রশ্ন কিছু গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমি মনে করেছি সেগুলো তুলে ধরলাম। দেখো প্রথম প্রশ্ন প্রমাকারণম प्रमाणम इति कस्य लक्षणम प्रमाणस्य। द्वितीय प्रश्न गौरश्वः पुरुष स्थिति कस्माद् हेतुर्णावाक्यम परस्पर आशंका विरहात्। 3 नंबर प्रश्न पर्वत वन्यमान प्रमेयत्वात् इत्यत्र दोष वर्तते दृष्टान्तरहितत्वम्। 4 प्रश्न तर्कसंग्रह दिशा परिमाणं गतिविधं चतुर्विधं। 5 प्रश्न पटं प्रति तुर्यविमादिकं कीदृशं कारणं भवति निमित्त कारणं। 6 नंबर प्रश्न पृथिवी इतरेभ्य विद्यते गन्धवत्वात् अत्र साध्या का गन्धवत्वम्। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न गन्धं प्रति पृथिवी भवति समवाय कारणम्। 8 नंबर प्रश्न अग्नि साध्यम अभिलक्ष्यम सपक्षस्य उदाहरणं विद्यते महानसः। 9 नंबर प्रश्न प्रागभावस्य लक्षणं भवति अनादिः स्वान्तः। अंतिम प्रश्न अध निर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचेनोत। आप्तवाक्यं शब्दः अर्थवादः योग्यता पदानाम् अविलम्बेन उच्चारणं सन्निधिः यथार्थवक्ता सा आप्तः। तो 7 नंबर गलो। 8 नंबर हमारे अवश्य एड पेज। तो गाइस आप लोगों से विनती है मैं हम लोगों का एड पेज तक आ चुका है जो है अगर आप लोगों को किसी भी दिक्कत हो আমাদের যদি কখনো কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফোনপে যে নাম্বার 7047499758 তোমরা সরাসরি জানাতে পারো কেমনভাবে বলে তোমাদের সুবিধা হয় সেটাও সরাসরি জানতে পারো। আদারওয়াইজ তোমরা ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো 7001572343 নাম্বারে এবং তোমরা কী জাতীয় নোটস দিলে তোমাদের সুবিধা হবে এবং কীরকমভাবে পড়লে তোমার সুবিধা হবে জাতীয় বিষয়ে যদি কোনো রকম মতামত দিতে চাও তাহলে সরাসরি আমার মেল dipanjan2019@gmail.com জানাতে পারো। আদারওয়াইজ অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তোমরা। সংস্কৃত ইজ ভ্যালুয়েবল ল্যাঙ্গুয়েজ তার কারণ আমি এই জাতীয় আপডেট নিয়ে প্রতিদিন আসবো। অবশ্যই লাইক করো, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে দাও অপর বন্ধুদের সঙ্গে এবং কমেন্ট সেকশনে জানাও তোমাদের ভিডিও কেমন লাগছে আমার এবং প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। সংস্কৃত ইজ ভ্যালুয়েবল ল্যাঙ্গুয়েজ। এছাড়াও তোমরা আমাকে ফলো করতে পারো আমার ফেসবুক পেজ সংস্কৃত তত্ত্বাবলী প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত গুরুত্ব, মেসেঞ্জারে দীপাঞ্জন সাহা, টেলিগ্রামে সংস্কৃত ইজ ভ্যালুয়েবল ল্যাঙ্গুয়েজ সেম গ্রুপ, ইনস্টাগ্রামে dipanjan.saha.7550, ডেইলি হান্ট কে আমি লিঙ্ক করে দিই ইউটিউব ভিডিওর সাথে শেয়ার করার সময়। अदरवाइज dipanjanscoaching.website.com इज माई वेबसाइट पर्सनल एंड ट्विटर में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है शुरू से अंत तक आप लोगों को देखना है। और एक चीज़ अगर आप लोगों को सच्ची में ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ख़ासकर कमेंट सेक्शन में बताना भी मत भूलना कि आप लोगों को कैसे लगी ये वीडियो। तो आज तो गया एक तर्क संग्रह यूनिट 4 का, लेकिन काल में ले आपके सामने आने वाला हो यूनिट 4 का बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण विषय सांख्यकारिका। तो काल होगा सांख्यकारिका। हैव अ गुड डे, वेरी गुड मॉर्निंग।